Good afternoon, dear kids. In my previous video, we have done about the different parts of brain, like we have cerebrum, cerebellum, and medulla. Today, we are continuing with the same. That is, we are studying about the brain first. Dear kids, can you see the pic here? Brain. Now, brain consists of four important lobes. What do you mean by lobes? Lobes are the compartments. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. आप ट्रेन में जाते हो तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं. उसी तरीके से आपके ब्रेन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं. तो देर आर फोर मेन लोब्स विच आर फ्रंटल लोब, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Can you see here? Frontal. Just one second. Okay, you have frontal, parietal, occipital and temporal. And you can see the different colors I have put up so that you can make it out कि frontal lobe आगे की तरफ, parietal थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ occipital lobe, and then you have temporal lobe near to your ear. Okay. Now what are the functions when we talk about? Functions for the frontal lobe, it is more of thinking, memory and your behavior. All the neurons which are acting towards your thinking, so you're behaving that way, and your memory, all that neurons are present in your frontal lobe. Then you have parietal lobe. You talk about your language and the touch sensation, especially that neurons are available in your parietal lobe. Then you have temporal lobe. Because it is near to your ear, it is related to your hearing as well as to your feelings. How do you feel? You're feeling happy today, so that neurons are specially located into your temporal lobe. Then you have occipital. Occipital lobe is specially because for the perception of sight. So if you're seeing something, those neurons give the message to the occipital lobe that you're seeing a picture or something. Okay. So next, if suppose we want to divide our brain in three main regions. So three main regions in our brain are forebrain, not forebrain, it is forebrain जो आगे की तरफ है. Forebrain, midbrain and hindbrain, or you can call it as hindbrain. As you can see, I have colored it differently so that you can understand. Forebrain is the major part that is green in color. Midbrain is a very small part that is pink in color, and hindbrain is the lower region or the backward region which is called as hindbrain. It is blue in color. So if you can see, what does forebrain consist of? It consists of the front part, that is cerebrum, and if you can notice here, small green color, this is thalamus and hypothalamus. Now this together, the region where these both are located, that is called as DIENCEPHALON, that is dencephalon. ठीक है. So where thalamus and hypothalamus are located, they are called as, that region is called as dencephalon. So two main regions in your forebrain, cerebrum and dencephalon. What is dencephalon? Dencephalon is a region where thalamus and hypothalamus are located. Now many kids do not know that what does thalamus and hypothalamus consist of, or what is their function. Now when suppose our brain is perceiving so many things, तो कितना सारा डेटा, कितना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास आता है. तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको फोल्डर में डिवाइड करना है, जैसे आपके मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हो तो कितना सारा डेटा होता है, उसको आप डिवाइड करके अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर करते हो. तो उसी तरीके से थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको हेल्प करते हैं कि आप अलग अलग डेटा को अलग अलग चीज़ में, अलग अलग फोल्डर में स्टोर करके रखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ को आप प्रेशर, अगर आपके फिंगर पे प्रेशर आ रहा है, ठीक है. अब प्रेशर और पेन ये दो अलग चीज़ें हैं. अगर फिंगर में पेन हो रहा है और प्रेशर हो रहा है, क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? नहीं. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस दैट यू कम टू नो दैट देयर इज अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन पेन इन योर बॉडी एंड प्रेशर इन योर बॉडी. अगर आपके बॉडी में प्रेशर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने सिर के ऊपर एक हैवी लोड ले लिया है, सो दैट इज़ प्रेशर फॉर मी, दैट इज़ नॉट पेन फॉर मी. बट कोई मेरे सिर के ऊपर या कोई मेरे फिंगर के ऊपर कोई नोकीली चीज़ दबा देता है, तो दैट इज़ पेन फॉर मी. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पेन एंड प्रेशर, एंड दैट डिफरेंस इज मेड बाय योर हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. ओके.
तो थैलेमस, मेजॉरिटी थैलेमस ये सब चीज़ें करता है, पेन और प्रेशर में डिफ्रेंशिएट। और उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस पूरा रेगुलेट करता है, एंड एज वेल एज वो काफ़ी सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। क्लियर? सो दैट इज हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस विच इज in the region dencephalon. So main forebrain consists of cerebrum and dencephalon. Clear? Now midbrain, as you can notice, it is a very small part, but it is related to your reflexes involving eyes and ears. What do you mean by reflexes? अगर आप कोई चीज़ देखते हो, उसका perception होता है, ठीक है, तो वो आंखों का देखना, कानों का सुनना, that is the sensation, the more sensation region is the midbrain. बिकॉज आइज और ईयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिड ब्रेन में होती है, काफ़ी छोटा सा पार्ट वहाँ पे पिंक कलर का दिखाया गया है। देन यू हैव हिंड ब्रेन, है ना। हिंड ब्रेन, एज यू कैन सी, इट कंसिस्ट ऑफ cerebellum. We have already discussed in my previous video about cerebellum. It also consists of pons. Now pons I think I have not discussed, and it consists of medulla oblongata. So this is your medulla oblongata, this is your cerebellum, and this bulgy region is your pons here. Now what does pons does? अब जैसे मैंने आपको बताया था जब हम लोग ने सेरिब्रम डिस्कस किया था, तो वी हैड सेरिब्रल हेमिस्फेयर, देयर वाज अ राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। जैसे आप अखरोट का एक टुकड़ा खाते हो तो अखरोट के दो हेमिस्फेयर देखते हो, दो आपके पार्ट्स निकलते हैं, तो ऐसा समझो कि वो अखरोट आपका ब्रेन है, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, और उसको बीच में जो ज्वाइन करता है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का क्या ड्यूटी है, वो यहाँ की इंफॉर्मेशन, राइट हेमिस्फेयर की इंफॉर्मेशन लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को देता है। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से अगर सेरिबेलम के लेफ्ट और राइट पार्ट में इंफॉर्मेशन को क्रॉस करना है तो वो पॉन्स करता है। कौन करता है? पॉन्स करता है। तो इट इज लोकेटेड इन द डाउन इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड बिलो सेरिबेलम, सेरिबेलम के थोड़ा नीचे होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या है? इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द cerebellum. Clear? Okay, then medulla oblongata we have already discussed. So all the involuntary actions which are not in your hand, like breathing, heartbeat, peristalsis, these all are guided by medulla. Okay, then we'll come to okay, this is the picture given into your this thing textbooks. So same part I have already explained you, not to worry. Clear? Then I'll come to my next part, that is spinal cord. As I have said you, what topic we are doing today? We are doing about the central nervous system. Central nervous system consists of brain as well as spinal cord. Two main things, brain as well as spinal cord. Now we will see what is spinal cord. जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो मेडुला के बाद जो रीजन आपका यहाँ के बाद, ये मेडुला है, यहाँ के बाद जो खींच के नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला टू द लोअर पार्ट ऑफ योर सैक्रल, दैट पार्ट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव नोटिस्ड, ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज 1 मिनट, okay, see what we have discussed in our brain, we discussed that brain जो है उसका outer part grey covering होता है and inner part is white covering. ठीक है, ग्रे कवरिंग में सेल बॉडी होता है और वाइट कवरिंग में एक्सॉन्स के पार्ट्स होते हैं, वहाँ से ट्रांसफर ऑफ मैसेज होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। मतलब कैन यू सी द फिगर हियर, कैन यू सी द डायग्राम हियर, दिस इज द ग्रे पार्ट, दिस इज द ग्रे पार्ट, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी, ऑल द न्यूरॉन्स की जो बॉडी होती है, मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है, उसमें सेल बॉडी अलग होती है और एक्सॉन जो होता है, जो द लॉन्गेस्ट डेंड्राइट, वो अलग होता है। ठीक है, तो सेल बॉडी का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे हम लोग के जो वाइट मैटर है, दीज आर द एक्सॉन्स। क्लियर? नाउ कैन यू सी हियर इन द सेंटर, दिस इज अ सेंट्रल कैनाल, central canal, this is known as central canal. We are studying about the structure of spinal cord. There's a central canal. Okay, then if you notice here, the nerve which is coming here,
It is divided into two parts, that is the dorsal root, which is we can say the dorsal side, the upper side, and the ventral root. तो ये ventral root में divide हुआ nerve. Getting my point? डॉर्सल रूट जो है वो सेंसरी नर्व कहलाता है और जो वेंट्रल रूट है वो मोटर नर्व कहलाता है. वी विल सी द स्ट्रक्चर, सो विल गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट द थिंग इज. तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम कर रहे हैं. इनसाइड इट इज ग्रे मैटर, आउटसाइड इट इज लाइट वाइट मैटर. ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, न्यूरॉन्स बॉडी, एंड वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सॉन्स. Clear? And in center there is a central canal. Okay, then we have done in our brain also that brain is covered by the meninges, that is your dura mater, arachnoid and pia mater. Similar covering is continuous with the spinal cord also. तो जो ब्रेन को कवर किया हुआ है वो कंटिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया हुआ है. सो सेम कवरिंग्स आर देयर. ओके. Further, I'll also make you know what is this, which figure it is. Now, can you notice here? Okay, as I said you, जैसे for example, आपने I'll come to here. Okay, I have taken particularly these pictures from your textbook, so that you can relate these things with your textbook also. So, if you suppose आपने हाथ लगाया आयन को and तुरंत your finger comes out. You stop touching that iron again. So you have put the finger on your iron और iron बहुत hot है. तो आपके फिंगर पे क्या आया है? फिंगर इज़ द रिसेप्टर. तो उसने क्या किया? रिसेप्टर ने एक सेंसरी नर्व भेजा और वो सेंसरी नर्व गया स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड ने एक डिसीजन लिया कि भाई वो हाथ हटाना है. सो देयर सिंगल नर्व विच इज़ गोइंग. एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो न्यूरॉन्स हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टुगेदर मेक अ नर्व. तो जब वो नर्व जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ एक्चुअली दैट रूट डिफ्रेंशिएट, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल. तो डॉर्सल रूट उसको सेंसरी मैसेज पास करता है स्पाइनल कॉर्ड को. आई शो यू हाउ. सी, इफ यू कैन नोटिस हियर, सपोज ये आपका हाथ है और आपको पिन चुभी या आपको हॉट आयन लगी है, तो हाथ ने क्या किया? एक मैसेज डाला. वो मैसेज गया स्पाइनल कॉर्ड. मैसेज मतलब इम्पल्स मतलब वो सेंसेशन, सेंसरी नर्व लेकर गया किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड ने वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन ये इम्पल्स पास किया उसी की मोटर नर्व को, और मोटर नर्व गई डायरेक्ट मसल्स के पास कि भाई अब आपको हाथ वहाँ से उठाना है. सो सी, यू कैन सी द थिंग दैट such kind of reflexes which are related, which are actually small reflexes, जैसे आयन लग जाना या जहाँ पे आपको दिमाग के पास तक न्यूरॉन्स को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. those are that instant. मतलब आपने सुई चुभी तो आप डायरेक्ट दिमाग तक नर्व को नहीं दोहराओगे कि डिसीजन मेकिंग या थॉट प्रोसेस में जाओ कि क्या मैं हाथ वहाँ से उठाऊँ क्या नहीं उठाऊँ, पिन में से या हॉट आयन में से नहीं. सो दीज डिसीजन मेकिंग और दीज रिफ्लेक्सेस, दीज एक्शंस आर डन जस्ट पासिंग द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा नेक के रीजन के नीचे के जो भी हिस्से होते हैं, अगर उनको रिफ्लेक्स एक्शन मैंने क्या कहा कि अगर आपको स्टिमुलस आ रहा है बाहर से, कोई पिन चुभ रही है, तो आप रिफ्लेक्स करते हो ना, उस चीज़ का एक्शन लेते हो. पिन चुभी या किसी ने आपको हर्ट किया या आपको हॉट आयन लगी या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपका इंस्टेंट रिफ्लेक्स आता है, आपकी दिमाग तक नर्व को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत कर देते हो. तो वो सब डिसीजन मेकिंग जो होते हैं वो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. गेटिंग माई पॉइंट. तो एक नर्व आपके हाथ की, एक्चुअली नर्व डिफरेंट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नर्व वही होती है, उसी नर्व में डिवाइड हो जाता है. नर्व गई हमारे हाथ से कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में. तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर जाते वक्त वो डिवाइड हो जाती है दो चीज़ों में, एक डॉर्सल रूट, एक वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट बताती है स्पाइनल कॉर्ड को कि मैं सेंसरी हूँ, मुझे सेंस हुआ है चुभने का,
गेटिंग माई पॉइंट। और वो डॉर्सल रूट फिर विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन वेंट्रल रूट को मैसेज भेजती है, वेंट्रल नर्व को मैसेज भेजती है। वो मोटर नर्व है, हमने देखा है कि सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, मोटर नर्व्स क्या होती हैं। तो वो मोटर नर्व को मसल के नर्व को मैसेज भेजती है कि भाई मसल वहाँ से एक्शन परफॉर्म कर, रिफ्लेक्स परफॉर्म कर और वहाँ से हाथ हटा दे। दिस इज़ एक्चुअली इतना मिनी सेकेंड्स में हो जाता है दैट यू डोंट कम टू नो दैट दीज ऑल इम्पल्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन. यू जस्ट feel that hotness of the iron and you just remove your hand. But in between removing your hand and feeling that hotness, there is a conversation through your spinal cord. Getting my point clear? So I'll just, in short, I'll explain you. I'll take a fresh page. Okay. See, suppose this is your spinal cord. ठीक है, ये आपका हाथ का नर्व है, ये इसने इसको पिन चुभी है, ये पिन चुभी है, तो ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाने की कोशिश करेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते समय ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा डॉर्सल रूट एंड एक हो जाएगा वेंट्रल रूट. डॉर्सल रूट इज रिलेटेड टू सेंसेशन, सेंसरी नर्व से बना हुआ है. वेंट्रल रूट आपका मोटर न्यूरॉन से बना हुआ है. नाउ दिस विल गो एंड सेंड द मैसेज एंड हियर समवेयर यू हैव द सेंट्रल कैनाल. हियर यू हैव द सपोज एसोसिएशन न्यूरॉन जो एसोसिएट करता है. एसोसिएशन न्यूरॉन मतलब क्या? जो एसोसिएट करता है दो नर्व्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में मैसेज ट्रांसफ़र करने वाला केमिकल ट्रांसमीटर हमने देखा था. यहाँ पे वैसा ही है, एसोसिएट करने वाला एक न्यूरॉन जो यहाँ से डॉर्सल रूट को एसोसिएट करता है वेंट्रल रूट से. दिस इज़ योर वेंट्रल रूट. Getting my point? This ventral root will be connected to your muscle. Getting my point? वही चीज़ है, हाथ वही है, लेकिन वो जो नर्व जाता है, ऐसा नहीं होता कि हाथ लेफ्ट हैंड में सुई चुभी है तो राइट हैंड एक्शन परफॉर्म करेगा. नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. द नर्व इज सेम, दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ओके, सो फर्दर वी हैव ओके, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ, सो यू गॉट द पॉइंट कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है. ठीक है, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? नाउ स्पाइनल कॉर्ड एज आई सेड यू इट रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक. बिलो द नेक के कोई भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू परफॉर्म होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन डिसीजन मेकर, यू कैन से लाइक दैट. ठीक है, लिखना मत एग्जाम में डिसीजन मेकर. ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू छोटे छोटे जो नेक के नीचे रीजन वाले जिनमें थॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या आप सोचते बैठेंगे क्या जब आपको सुई चुभती है कि मैं हाथ हटाऊं सुई से कि नहीं हटाऊं कि नहीं हटाऊं? ऐसा सोचते हो क्या आप? तो ब्रेन में जाते हो क्या? ब्रेन में न्यूरॉन जाता है क्या डिसीजन लेने के लिए? नहीं, आप तुरंत हटाते हो. तो दैट नेक के रीजन नीचे रीजन वाले जो भी एक्शंस परफॉर्म होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको स्टिमुलस लगता है. गेटिंग माई पॉइंट? जिसको थॉट नहीं लगता, जिसको स्टिमुलस लगता है, बाहर के स्टिमुलस से वो इफेक्ट होता है, वो सब एक्शंस परफॉर्म करने के लिए किसका फंक्शन है? वो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है. गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था, इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम स्किन टू मसल. ठीक है, अब यहाँ पे कोई कोई चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन को बतानी पड़ती हैं, तो वो क्या करता है? ब्रेन तक भी मैसेज भेजता है. फिर ब्रेन डिसीजन मेकिंग करता है और ब्रेन उसको बताता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कि कौन से मसल को मूव करना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में चुभा है सुई, तो आप पैर तो नहीं मूव करोगे, नेचुरल है, पैर नहीं मूव करोगे, तो हाथ की मसल मूवमेंट होनी चाहिए. तो वो मसल खुद से मूव नहीं करेगी. इट नीड्स अ डिसीजन, इट नीड्स अ न्यूरॉन, इट नीड्स द नर्व इम्पल्स टू मूव. वो नर्व इम्पल्स कहाँ से आएगा? तो वो स्पाइनल कॉर्ड उसको मैसेज भेजेगा, इम्पल्स भेजेगा कि मसल तेरे को यहाँ से हटना है, यहाँ से उठना है, तब जाके वो हाथ आपका उठेगा. गेटिंग माई पॉइंट? उस पिन में से. सो ऑल द रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक
are done by your spinal cord. And secondly you can say spinal cord आपके sensory impulse को भेजता है brain के पास, स्किन से लेकर ब्रेन तक ट्रांसफ़र करता है, फिर ब्रेन उसको डिसीजन देता है तो वो ब्रेन का इम्पल्स लेकर मसल तक ट्रांसफ़र करता है कि हाथ उठाओ. एट सम पॉइंट्स वो ब्रेन तक नहीं भेजता, जब उसके क्विक आपको रिफ्लेक्सेस देने हैं, ब्रेन का थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए तो वो ब्रेन तक इम्पल्स नहीं भेजता है, अपने थ्रू ही जो एसोसिएशन न्यूरॉन के थ्रू वो अपना साइकिल पूरा कर देता है. गेटिंग माई पॉइंट? Okay, are you clear with this? So I think I'll stop it here rather than taking it into too depth. Next I'll be taking your peripheral nervous system. In that we have different parts again. So I'll be taking it tomorrow or whenever we have our next session decided. So shall we stop it here? God bless.